ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇರೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇರೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿಸೋ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ. ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 12 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದೆ. ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ಬಡವರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ದೇಶ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಆಗಿವೆ. ಮೋದಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ಅನ್ನೋರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಕೇಸ್. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪದೇ ಪದೇ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಳವಳ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ರಚನೆಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ತರುತ್ತವೆ. ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ ವಿಚಾರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಚಿಂತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ತಮ್ಮವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಕ ಬೆಳಗಾವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ BR ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಇರೋ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪ. भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 11 वर्षों में अगर हम देखें तो जो भारत के लोगों की, भारत के ऊपर लोगों की जो ये एक विचार थी वो समाप्त हुआ कि बहुत ही अच्छे ढंग से ये 11 साल हमारा आम जन के लिए जो एक हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको एक समाहित करते हुए समावेशी विकास की ओर भारत आगे बढ़ रहा है, जहां युवा, महिला, किसान और गरीब हर किसी को साथ लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक के बाद एक बड़े बड़े निर्णय हुए। चाहे हम धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें और उसके साथ ही अगर हम देखें तो 3 तलाक और एम्स, IIT, IIIT से लेकर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी संख्या में इन सारे चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है और निश्चित रूप से आज देश के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज अंतरिक्ष से लेकर अगर देखें तो नीचे तक हर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि भारत का विकास हुआ है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना और उसके साथ ही साथ पूरे अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 23 कंट्री से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं हर जो एक भारतीयों की जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हर किसी को ध्यान में रखते हुए और उन्होंने ये काम किया है, तो निश्चित तौर पे ये गौरवान्वित होने वाला पल है और हर भारतीयों के मन में अब इच्छाएं हो रही है कि अब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। भारत हर एक चीज़ों को कर सकता है। हम अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से जो कायराना हमला हुआ उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया गया। उसके साथ ही आप देखें, उसके पहले देखें तो चाहे बालाकोट का हो, कई ऐसे अब जवाबी कार्रवाई में हम हैं, यानी कि अब भारत की जो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है और निश्चित तौर पे भारत आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस वाले मोदी जी को हिटलर जैसे, देखिए ये जब इनको अवसर मिला, अभी हम लोग 50 साल आपातकाल का अभी 2 दिन पहले 25 जून को हम सब ने देखा कि उसको याद लोगों ने किया कि वो जो आपातकाल का दौर था, हिटलर कहने वाले किस तरह से अपने हित के लिए
अब सत्ता बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को कैद कर दिया, जेल खाने में तब्दील कर दिया। 25 जून की वो आधी रात 12 बजे के बाद उन्होंने जिस तरह से इमरजेंसी की घोषणा कर न पत्रकार को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता का उन्होंने अवसर दिया, न ही अधिवक्ता कोई अपनी बात को कर सकते थे। यानी कि सभी को, जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, सब लोगों को इन्होंने किस कदर प्रताड़ित किया, कितनी यातनाएं दी, कितने जुल्म सहे लोग, उनको सबको बिना किसी कारण के जेल भेजा जाता था। तो ये साफ दर्शाता है हिटलरशाही किसने किया। मैम, कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के ऊपर रेप हुआ है। देखिए, बहुत ही दुखद है और लगातार इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में, इसके पहले मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ, फिर लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ घटनाएं हो रही है, तो निश्चित तौर पे दुखद है। सरकार संवेदनशील नहीं है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी उन्हें कहा था कि अगर इस तरह की जब घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से जितना जल्द हो न्याय लोगों को मिले, लेकिन उस पर भी बहुत रुचि नहीं दिखाई, बहुत कम वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया। और एक महिला मुख्यमंत्री वहाँ पे है और महिला ममता बनर्जी जी वहाँ पे हैं, और उसके बाद इस तरह की आए दिन घटनाएं कहीं ना कहीं मन व्यथित करता है। और हम कहें तो सरकार इन सारी चीज़ों के लेके बहुत गंभीर नहीं दिखती है, और आए दिन इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में घटती रहती हैं। कोलकाता में उतना ही नहीं, कर्नाटक में भी बहुत सारे ऐसा गैंग रेप केसेस में रिसेंटली दो महीने में बेलगाम सिटी में भी 3-4 ऐसा केसेस भी बाहर आ गए। क्या हो रहा है? सरकार के द्वारा, जो राज्य की सरकार है, जो जानकारी मिली, ये सरकार सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये काम करते हैं। जब चुनाव था, चुनाव के पहले काफ़ी ज़्यादा फ्रीबीज के बारे में इनकी ये चर्चाएं, लोगों को ये बोल के कि वोट लेने के लिए काम करती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, सत्ता में आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के हित के लिए काम कर रही है, और राज्य की चिंता, राज्य के लोगों की चिंता उन्हें नहीं है। और आज जिस तरह की ये घटनाएं घट रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, जिसके वजह से आज ये घटनाएं होती है, और निश्चित रूप से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सत्ता के लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस की विधायक की बोल रहे कि पैसे दिए तो उतना ही जो गरीब लोगों को घर मिलता है। रिसेंटली बी आर पाटिल ने जो इसके बारे में स्टेटमेंट किया था। कांग्रेस का पर्याय ही है भ्रष्टाचार। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार रही है, भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, और ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, आम जनता के लिए नहीं सोचते। और हम देखें तो कांग्रेस समर्थित झारखंड में भी इनकी सरकार है, और अधिकारी बेलगाम है, कहीं भी सुनवाई नहीं होती। ब्लॉक में लोग जाते हैं, अंचल में लोग जाते हैं, तो वहाँ कुछ काम होता है तो वो लगातार चक्कर काटते हैं, बिना पैसे का काम नहीं होता। तो इनका सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना, ये इनका एक उद्देश्य है। और जो सरकार है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। वो कुंभकर्ण की नींद सोती रह रही है कि अब जब उनको एक बार सत्ता हासिल करना था, सत्ता हासिल करके वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का वो काम कर रही है और अपने लोगों के लिए कर रही है। धन्यवाद।